دن کے لیے، اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، اور خداوند آج کا دن ہمیں بخشا ہے، زندوں کی زمین پہ رکھا، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا دور نزدیک سے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم سب آج ایک جگہ اس تیری محفل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ خداوند آج تیری آواز کو سنی جائے. تو خداوند وہ ہمارے دلوں پہ آج وہ آواز نقش ہو، وہ کلام نقش ہو جائے یسوع کے نام میں، اور وہ 100 گنا پھل لے کے آئے. آمین. پریز لارڈ. اب میں ایک ورس پڑھوں گی. خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. پریز لارڈ. اب ہم عبادت کے اگلے حصے میں داخل ہوں گے، اور میں سمر بیٹے سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو اوپننگ پریئر میں ہمیں لیڈ کریں. آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہے. میں خود پریئر کرتی ہوں، اوپننگ پریئر کرتی ہوں. Praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. خداوند تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں. خداوند تو بزرگ آسمانی باپ ہے. خداوند ہمیشہ تو قائم رہنے والا ہے. تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہے ہی مبارک. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے. تیرا پاک روح ہمیں آگے پیچھے سے گھیر لے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو ہماری درمیان پیارے خداوند رہنے والا ہے، تو ہمارے درمیان رہے گا. اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور خداوند جی تجھے ویلکم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں خداوند. ابھی پیارے خداوند اپنی پوری میٹنگ کا ہولڈ خداوند تجھے دیتے ہیں. خداوند جو کوئی بات پیارے خداوند کی جائے، خداوند جو ورشپ کی جائے وہ تیرے لائق ہو. خداوند تو اسے قبول کرنا. خداوند الفاظ کی ترتیب دینا. جتنے لوگ پیارے خداوند ورشپ کرنے کو ہے اور خداوند گیت گانے کو ہے خداوند، اور آگے خداوند جی کلام کو جو پیارے خداوند تیرے تک پہنچا، پیارے خداوند تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو پیارے خداوند تجھے ویسل یوز کیا ہے، بھابھی کو خداوند ابھی سے مسا کرنا، اپنی خادمہ کو بڑے زور سے استعمال کرنا. یس لارڈ جیسس تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیری بلیسنگ کے لیے. خداوند اب تو خداوند پاک روح اس میٹنگ کو لے، اور پاک روح کو آپ اسے لیڈ کیجیے. خداوند میں نہیں بلکہ پیارے خداوند آپ اسے لیڈ کریں. خداوند میں یہ سارا آنر آپ کو دیتی ہوں کیونکہ آپ عزت اور جلال کے لائق ہو. یس لارڈ جیسس تیرا شکر کرتی ہوں. پیارے خداوند ہمارا اس پوری میٹنگ میں ساتھ دیجیے گا. ہر طرح کی نیٹ کی پرابلم خداوند یسوع کے نام سے جاتی رہے، اور جتنے آ چکے ہیں ان کے لیے بھی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اور جتنے آنے کو ہے خداوند تو ابھی سے انہیں اپنے لیے تیار کر. یس لارڈ جیسس تیرا شکر کرتے ہیں. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں خدا یسوع کے نام میں. آمین. پریز لارڈ. اب ہم آگے ورشپ کا آغاز کریں گے. میں سسٹر روندر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ورشپ میں ہمیں لیڈ کریں. سسٹر روندر. جی پریز پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تھینک یو گاڈ. میں وچ میں نہ رہے، میں وچ وس یشو تو، میں وچ میں نہ رہے، میں وچ وس یشو تو، تیرا مینو ملے آسرا، تیرا مینو ملے آسرا، کی کرنا میں دنیا نو، میں وچ میں نہ رہے، میں وچ وسے یشو تو، چرنا دے وچ بیٹھ کے میں تا بھول جاواں میل منارے، چھایا تیرے ہتھاں دی ملے کی کرنی میں شبد کے چوبارے، گڑ تیرے گاما ناصری، گڑ تیرے گاما ناصری، میرا انگ انگ میرا لوں لوں، میں وچ میں نہ رہے،
विच वसे यीशु तू। मना वाली मैल मिट जे जदों छू लवे तेरी हजूरी। पाक साफ रूह बन जे हो जे आस दिलां दी पूरी। पाक साफ रूह बन जे हो जे आस दिलां दी पूरी। साहां वाले चारे खेते कत्तां नाम तेरे दारू। मैं विच मैं ना रवे, मैं विच वसे यीशु तू। आज जुगादा तो सच तू ही सच सदा रहना। मेरे जेहे बंदियां ने इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। मेरे जेहे बंदियां ने इत्थे बैठ सदा नहीं रहना। जे तू यीशु मेर कर दे, जे तू यीशु मेर कर दे, तेरे साथ चलूं हर सू। मैं विच मैं ना रवे, मैं विच वसे यीशु तू। तेरा मैनू मिले आसरा की करना मैं दुनिया नू। मैं विच मैं ना रवे, मैं विच वसे यीशु तू। मैं विच मैं ना रवे, मैं विच वसे यीशु तू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। प्रेज लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब खुदावंद की इबादत करने के लिए इधर मौजूद हैं, खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। खुदा का इसके लिए शुक्र करते हैं। और अब मैं नेक्स्ट वर्शिप के लिए सिस्टर सुरैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें नेक्स्ट वर्शिप में लीड करें। सिस्टर सुरैया जी ठीक है। हम जबूर 19 गाएंगे।
پریز لارڈ. گاڈ بلیس یو بیٹا. خداوند آپ کو برکت دے. میں ایک ورس پڑھوں گی. تو نے میری جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا. تو نے سوری اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے. وہ پریز لارڈ. خداوند یقیناً ہم جب خداوند کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں دیتے ہیں. خداوند کا اس کے لیے شکر کرتے ہیں. اب میں وکرم سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں ورشپ میں آگے لیڈ کریں. پریز لارڈ. Hallelujah, praise the Lord. سانب کے رکھی دل دا میں کمزور، یسو مینو سانب کے رکھی، سانب کے رکھی دل دا میں کمزور، یسو مینو سانب کے رکھی. میری نیکی کسے کم نہ آوے، میری نیکی کسے کم نہ آوے، تیری نیکی کچھ ہور، یسو مینو سانب کے رکھی، سانب کے رکھی دل دا میں کمزور، یسو مینو سانب کے رکھی. ہتھاں پیراں دے وچ کل ٹھکوائے، ہتھاں پیراں دے وچ کل ٹھکوائے، سولی تے اتے دل روڑ، یسو مینو سانب کے رکھی، سانب کے رکھی دل دا میں کمزور، یسو مینو سانب کے رکھی. یسو جیا کوئی ہور نہ دسدا، یسو جیا کوئی ہور نہ دسدا، ٹوٹے دلاں نوں دیندا جوڑ، یسو مینوں سانب کے رکھی، سانب کے رکھی دل دا میں کمزور، یسو مینوں سانب کے رکھی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. پریز لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کے اس موجودگی کے لیے کہ خداوند کا پاک روح ہم سب کے درمیان جنبش کرے. خداوند ہمارے درمیان اپنے تخت لگائے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. پریز لارڈ. اب ہم اپنی عبادت کی نیکسٹ حصے میں جائیں گے اور میں چاہوں گی کہ ہم بھابھی کے لیے چھوٹی سی پریئر کریں تاکہ خداوند پاک روح خداوند اپنے پروں میں انہیں محفوظ رکھیں اور جو بھی کلام کریں وہ خداوند کے صحون سے آئے. پریز لارڈ. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. پریز لارڈ. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیری تمجید کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے. خداوند کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے. خداوند تیرا تخت ہمارے درمیان لگ چکا ہے. خداوند تو ہماری پرستش کے لیے ہمارے ساتھ رہا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اب جبکہ خداوند ہم تیرے کلام کی آواز سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو خداوند تیری خادمہ کو خداوند تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں. خداوند انہیں بڑے زور سے استعمال کرنا. خداوند جی تو اپنی حکمت ان پہ انڈیلنا. خداوند پاک روح تو آگے پیچھے سے انہیں گھیر لینا. خداوند تیری آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے. اور خداوند جو کلام خداوند تو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے پیارے خداوند تو ہم سے کرے، خداوند وہ اپنی محبت ہمیں دکھائے، تو آج خداوند تو وہ ہم پہ ظاہر کرنا. یس لارڈ جیسس. بھابھی کے لیے خداوند تیری خادمہ کے لیے خداوند تو اس سے برکت کی دعا چاہتی ہوں. خداوند برکت چاہتی ہوں، انہیں بڑے زور سے استعمال دے. اپنا گہرا مسا ہے پیارے خداوند انہیں دے اور تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو یسوع کے نام میں. آمین. اب میں بھابھی سے ریکویسٹ کروں گی سسٹر روز سے کہ وہ آئیں، شاہین روز سے کہ آئیں اور خداوند کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچائیں. پریز لارڈ. ویلکم. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو سنیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند اسی طرح اپنے نام اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. بہت سی روحیں آپ کے وسیلہ سے بچیں اور بہت سے لوگوں کو آپ مضبوط کرنے کا، اٹھا کھڑا کرنے کا، خداوند میں لانے کا باعث بنے. اپنی فیملی کے لیے اور اس گروپ کے لیے آپ باعث برکت بنتی رہیں اور خداوند کا دہنا ہاتھ آپ کے اوپر بڑا رہے. قدرت والا، طاقت والا اور خداوند کی 7 روحیں آپ کی زندگی میں کام کرتی رہیں. گاڈ بلیس یو.
ہم روٹی اور پانی کے لیے دعا کریں گے۔ خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خدا ان یسوع تو نے پھر سے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم تیری حضوری میں آئیں، تیرے قدموں میں بیٹھے، تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہو سکے۔ خدا یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا یسوع تو نے ہماری خاطر جان دی، خدا ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے۔ خدا یسوع تو نے کوڑے کھائے، خدا تو نے اپنے بدن کو کوڑوں سے چلنی کیا تاکہ ہمارے بدنوں پہ کوئی ایسا داغ، کوئی تھپا، کوئی چھری نہ رہے، کوئی بیماری، کوئی لانتے ہماری زندگی میں کام نہ کریں۔ خدا یسوع تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑے پلان کے لیے کہ خدا یسوع تو ہماری خاطر زمین پہ آیا اور انسان بن کر خدا ہمیں وہ سبق سکھانے کے لیے، وہ فروتنی سے چلنے کے لیے، خدا فرما برداری میں چلنے کے لیے، خدا وہ سب کچھ تو نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح سے شیطان پہ فتح پا سکتے ہیں اور کس طرح اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بنائے عالم سے پہلے ہی مقرر کی ہوئی ہے۔ خدا یسوع تیرا شکر ہو تیرے سارے پیار کے لیے، محبت کے لیے، تیرے سارے منصوبے کے لیے خدا یسوع۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، خدا پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں کو یسوع کی مانند بنا رہا ہے، ہمیں روز بروز اس تازہ تیل سے مسح کر رہا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا جب ہم اس روٹی کو اور اس پانی کو لیں اور اس تیل کو لگاتے ہیں اپنی زندگیوں پہ، اپنے بدنوں پہ، اپنے گھروں کی چیزوں پہ، تو خدا یسوع تیرا مسا ٹھہرا رہے۔ خدا جہاں جہاں بھی ہم اس کو لگائیں، ہمارے گھر کی چیزیں، ہماری زندگیاں، جسم کا ایک ایک اعضاء، ایک ایک سانس ہماری پاک اور صاف ہو جائے، تاکہ خدا ہم اس طرح سے تیار ہو سکیں جس طرح خدا یسوع تو چاہتا ہے، جس طرح سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنی دلہن کو بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتے ہیں۔ خدا پاک روح ہمیں یسوع کی مانند بنا دے۔ اور جب بھی ہم اس پانی کو لیں، ہمارے اندر کی ساری وہ بیماریاں، ساری وہ گندگی، ناپاکی، جو بھی ہمارے اندر باتیں تجھے پسند نہیں ہیں، ہمارے رویے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، بیماریاں ہیں، لانتے ہیں، خدا یسوع کے نام سے وہ جڑ سے ختم ہوتی جائے، ان کا کوئی ہماری زندگیوں میں نام و نشان نہ رہے۔ خدا ہم تجھ میں پیوست ہوتے جائیں، تجھ سے جڑتے جائیں، تاکہ بہت سا پھل لے کے آئیں۔ خدا یسوع جب بھی ہم اس روٹی کو اور اس پانی کو لیں، تو خدا یسوع تیرا نیا زور، تیری نئی طاقت، تیری قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور بھروسے اور توکل سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ آپ ایمان سے اس پانی کو پئیں اور روٹی کو کھائیں، تاکہ ہمارے اندر سے بیماریاں، لانتے اور گندی باتیں یسوع کے نام سے نکلتی جائیں۔ ہم کاشوا 12 باب پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تقریباً 9 آیت تک بات کی ہے، 10 تک میرا۔ وہ آج ہم کوشش کریں گے کہ باقی کی جو آیتیں ہیں 11 سے لے کے 17 آیت تک، تو دیکھیں گے کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ تو نہمایہ اور وفا ہے ہمارے ساتھ، ہے نا؟ جی ہاں دی 2 منٹ میں تیار ہو رہی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جی، تو ہم نے اس میں سیکھا تھا اس عورت کے بارے میں،
اور اسطحا کے بارے میں سیکھا تھا 12 چیپٹر جو ہے نا، کہ یہ سارا اس کا تاج کا اور اس کپڑوں کا، آفتاب کا، ستاروں کا مطلب کیا ہے نا، اور جننے کے سے جو درد لگے ہوئے ہیں اس عورت کو، اس کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے سیکھا تھا. اور 5ویں آیت جو ہے کہ وہ بیٹا جو ہے، یا وہ ہم نے سیکھا کہ مرد بچہ ہے نا، انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرد بچہ ہے، یعنی وہ بچے کی طرح ہمبل ہے، حلیم ہے، اور مرد کی طرح کہہ لیں کہ دلیر ہے. تو وہ یکا یک جو ہے آسمان پر پہنچا دیا گیا خداوند کے تخت تک. اور یہ ریپچر کو شو کرتا ہے، ہم نے سیکھا تھا ہے نا، یعنی جو ایک چھوٹا سا کہہ لیں گروہ ہے، کہ یعنی سارے مسیحی نہیں، پوری کلیسیا نہیں، پورا چرچ نہیں، بلکہ اس کلیسیا میں سے کہہ لیں، یہ ایک اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہ سمجھانے کے لیے کہ کلیسیا یا یہ عورت جو ہے یہ چرچ ہے. پوری دنیا میں جو چرچ ہے یہ وہ ہے، یہ عورت جو ہے. تو یہ چرچ ہے، اس کے اندر سے کہہ لیں، یا روحانی طور پہ ایک سمجھانے کے لیے ایک بچے کے طور پہ، یا ہے نا، تو اس کے اندر سے نکلا، یعنی چرچ کے اندر سے، کلیسیا کے اندر سے وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے نا. جو ہم نے سیکھا تھا کہ کہہ لیں کہ خدا ان کے ساتھ وفاداری سے، اور وہ خصوصیات جو ہم نے سیکھا کہ 4 اس میں یعنی ایمان ہے، محبت ہے، حلیمی ہے، پاکیزگی ہے. تو یہ خصوصیات اس میں ہیں. اس کو درد ذہ لگے ہوئے ہیں ہے نا، یعنی جننے کے سے درد لگے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ وہ کسی بھی طریقے چاہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں یا وہ گروہ جو ہے کہ ہم یسوع کے اس قد کے اندازے تک پہنچے ہے نا. تو یہ ساری آپ، یہ ہم نہ بھی مطلب کوئی بندہ سمجھائے آپ کو تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی سے بھی سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، یا سب جو ہیں اس طرح پاکیزگی میں یا اس طرح سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ محبت میں نہیں چل رہے. اور چرچ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں ہے نا. تو اس لیے پوری دنیا میں جو چرچ ہے یا کلیسیا ہے، اس میں سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اس بچے کو یا اس مرد کو پیش کرتے ہیں ہے نا، اور وہ اٹھا لیے جائیں گے ہے نا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو 7ویں آیت تھی کہ جب یعنی وہ اٹھا لیا گیا، ہاں بچہ اٹھا لیا گیا، اور 6 آیت میں ہے کہ وہ عورت جو ہے بیابان کو بھاگ کے 1260 دن کے لیے. اور یہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو بیابان ہے وہ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو یا آزمائشوں کو پیش کرتا ہے نا. تو یعنی وہ عورت جو ہے، جب بچہ جو ہے آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی وہ گروہ جو ہے، وہ لوگ جو ہیں جو ریپچر ہو گئے ہیں آسمان پہ اٹھا لے جائیں گے. تو اس کے بعد جو عورت ہے، جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، اس کو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ ہم نے سیکھا تھا کہ وہ محل تھسلونیکیوں کے خط میں کہ اب ایک ہے جو اس مخالف مسیح کو جو کہ آنے والا ہے وہ تب تک نہیں آ سکتا، سامنے اس کی اسپرٹ کام کر رہی ہے یا وہ زمین پہ ہے، تو لیکن وہ سامنے تب آئے گا جب پاک روح، خداوند کا پاک روح اور دلہن جو ہے آسمان پہ اٹھا لی جائے گی ہے نا. تو اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ ہم نے سیکھا تھا کہ جس طرح جو وہ 10 کنواریاں ہیں ہے نا، اس کی طرح ہو جائے گی، یعنی بیابان کی طرح یا مصیبتوں میں سے اس وقت اس کو گزرنا پڑے گا. اور 2 قسم کے لوگ کہہ لیں، یعنی چرچ میں کہہ لیں 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ زمین پہ رہ جائیں گے. ایک وہ جن کو اب یعنی جان دینی پڑے گی کہ
وہ اپنے فیت کو بچا کے رکھیں یا خدا یسوع مسیح میں بنے رہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جان دینی پڑے گی، ہے نا؟ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے یا گروہ ہوگا sorry، جو خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیں گے، یعنی کہ وہ بیوقوف کنواریاں وہ جو چھاپ ہے وہ لے لیں گی، اور جو چھاپ لے لیں گے یا وہ چرچ سارا جو ہے وہ اس عورت کو پیش کرتا ہے، یعنی یہ ابھی ہم اس میں 13 ہے نا ورس یا 14 ورس میں ہم نے کہ باقی کی اولاد، یعنی پہلا بیٹا جو کہہ لیں یا پلوٹا جو ہے یا پہلا پھل جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، لیکن باقی کی بھی اس عورت کی جو اولاد ہے ان میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ بچائے جائیں گے، اور وہ باقی کی اولاد کون ہے؟ وہ عقل مند کنواریاں ہیں، وہ ہوشیار کنواریاں ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ وہ ان میں اتنی عقل ہوگی، اتنی سمجھ ہوگی کہ وہ چھاپ نہیں لیں گے، یعنی اس وقت ابھی ہم یہ ورسز پڑھتے ہیں، ہے نا، کہ ان کو اتنا جو کہہ لیں کہ فضل جو ہے وہ دیا جائے گا، یا یہ جو عقاب کے پر ہیں وہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں، تو یا ان کی پرورش جو ہے وہ اس چیز کو پیش کرتی ہے کہ اتنا ان کو اس مصیبتوں میں سے گزریں گے، لیکن وہ کیا ان کو بچائے گا، کہ ابھی ہم اس آگے ورسز میں پڑھیں گے کہ اس یا اس وقت اس مصیبت میں سے، اس مشکل میں سے، آزمائشوں میں سے کیا چیز ان کو بچا کے رکھے گی، اور وہ اس کو پیش کرتا ہے کہ یہ ان کی پرورش ہو رہی ہے یا عقاب کے پر، تو یہ اس چیز کو کہہ لیں، یعنی خداوند اس میں مصیبتوں کے دور میں ان کو محفوظ رکھے گا، یا وہ فضل، وہ رحم ان پہ ہوگا، جیسے کہہ لیں کہ پرانے عہد نامے کے جو ہمارے مقدسین تھے ان کے پاس بھی خداوند کا ایک کہہ لیں رحم یا فضل، جو کہہ لیں کہ ایک میں کہوں گی کہ جو اب فضل کا دور ہے اس طرح نہیں، لیکن جیسے تھوڑا خداوند کا ایک جزوی طور پہ ایک خداوند کا جو رحم تھا، ترس تھا، اسی طور سے اب یہ جو اس وقت عقلمند کنواریاں یا ہوشیار کنواریاں رہ جائیں گی، ان پہ اس طرح سے تھوڑا، جس طرح پاک روح آپ کو پتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا ان کا پاک روح کام کرتا تھا، ہے نا، تو اس طرح سے یعنی جیسے کہہ لیں تھوڑے طریقے سے یا فضل جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرے گا، تو یہ شو کرتا ہے ان کی پرورش کو کہ خدا ان کو سنبھالے گا اور تحفظ دے گا، اور یہ عقاب کے پر جو ہے وہ اس چیز کو پیش کرے۔ تو بھی ہم ورسز کے ذریعے ان تھوڑی سی جو آیتیں ہیں ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ لڑائی ہوئی اور ابلیس کو، یعنی جب دولن جو ہے یا وہ گروہ جو ہے یا وہ مرد بچہ مین چائلڈ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، تو آسمان پہ لڑائی ہوئی مائیکل فرشتے کی اور خداوند کے شیطان کے اژدہا کے ساتھ، خداوند کے فرشتوں کی اور اژدہا کی اور اس کے جو بدروہیں کہہ لیں اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ابلیس کو جو ہمیں گمراہ کرتا ہے اور جو الزام لگانے والا ہے، اس کے بارے میں اس دن ہم نے تھوڑا سیکھا تھا، ہے نا، اس کو زمین پہ گرا دیا گیا، وہ زمین پہ اس کو گرا دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہی ہے یعنی پرانا سام کیا اژدہا جو ہمیں خدا ان سے کہہ لیں دور کرنے والا، اور ہماری ہر جو کہہ لیں کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، تو یہ جلدی سے جاتا ہے ایک جیسے کہہ لیں کہ عدالت لگی ہوئی ہے خداوند کے سامنے، یہ تخت، یہ ہمیں یوب کی کتاب سے تھوڑی سمجھ لگتی ہے نا، کہ یہ تخت تک جاتا ہے اور خداوند کو ہماری شکایتیں لگاتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم خوش ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ہمارا بھی وکیل ہے خداوند یسوع مسیح، تو لیکن یہ جاتا ہے اور ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، تو اسی لیے ہم نے اس دن تھوڑا سیکھا تھا کہ ہمیں جو کچھ غلطی کوتاہی کچھ بھی ہو گیا، جلدی سے جو ہمارا وکیل ہے جس نے ہماری خاطر جان دی، خون بہایا، ہم جلدی سے اس کے پاس جائیں اور اس کو سب کچھ بتائیں، اقرار کریں، توبہ کریں، معافی مانگے، ہے نا،
तो जिस तरह कहते हैं कि डॉक्टर को अपना पूरा हाल बताना चाहिए, पूरी डिटेल बतानी चाहिए, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा वकील है, हमारे लिए शफायत करता है या हमारे लिए वो जंग लड़ता है, तो उसको जल्दी से बताया करें, बजाय कि ये पहले ही। इसीलिए खुदावंद देखिए लिखा हुआ है कि अगर हमारी कोई नाराज़गी हो गई है, तो वो आयत पता नहीं कहाँ है, लिखा हुआ है कि शाम होने से पहले, रात होने से पहले अपनी ख़ुफ़गी को हम दूर कर दें। यानी हम कोशिश करें जल्दी से जल्दी, कोई भी गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी माँगे, तौबा करें, है ना? ताकि हमारा जो वकील है उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। जब ये शिकायतें लेके जाता है, जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाता है यही शैतान, तो हमारे खुदावंद के पास वो सारा जो उसका खून जो है मिटा देता है हमारे सारे गुनाहों को, गंदगी को, नापाकी को, तो हम उसको इस्तेमाल करें, वो यूज़ करें, है ना? और माफ़ी माँगे और यीशु के खून से धो के अपने आप को पाक-साफ करें, है ना? तो इस तरह थोड़ा-सा हमने सीखा था। तो आज हम 11 आयत से पढ़ते हैं और फिर थोड़ी इस पे बात करते हैं। जी, माया आप 12 चैप्टर मकाशवा 12 बाब उसकी 11 आयत से आप एंड तक पढ़ना। और वफ़ा अगर नहीं है तो अच्छा वफ़ा आ गई है। जी वफ़ा। 12 से स्टार्ट करो ना दी। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उससे इस नदी से बहा दे। पर पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन। आमीन। हाँ जी। जी श्रेया आप पढ़ेंगे उर्दू में? ओके 11 से हाँ जी। और वह बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा थोड़ा हिस्सा वक्त बाकी है। और जब अजदा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के आवाज नहीं आ रही मैं श्रेया। ओके चलें, कोई बात नहीं है, हम ना बात करते हैं। ये यहाँ पे जो 10 आयत हैं और 11 आयत है, जिनमें जो गालिब आने वाले का जिक्र किया गया है, यानी जिन्होंने जीत हासिल की है या फतह हासिल की है, ये उसी सामने की से बात। उड़कर बियाबान में
हाँ जी। ये जो मर्द बच्चा उठा लिया गया था, क्योंकि 10 आयत में हम ये देखते हैं, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी, क्योंकि वो आसमान तक वो मर्द बच्चा जो था या ये ग्रोह तो या खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन जो है आसमान पर उठा ली गई थी, है ना? तो ये जो गालिब आने वाले हैं, ये वही हैं, उन्हीं का ज़िक्र जो है कह लें कि हो रहा है। अ, और ये अ, हम जो गालिब आने वाले हैं क्योंकि जो थे हमने सीखा कि मुकाशवा 20 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि जो शहीद हुए वो गालिब नहीं आए थे। जिन्होंने अ, मुकाशवा 20 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस रहमान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। तो ये जो खुदाम यीशु मसीह की खातिर जो शहीद होंगे, अम, उनके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि वो अम, गालिब आए या उन्होंने जीत हासिल की या उन्होंने फतह जो थी वो हासिल की। एक और हवाला है मुकाशवा 7 बाब जिनमें ये शहीदों का कह लें कि हमें ज़िक्र मिलता है। हमने देखा कि जो तख्त के आगे खड़े थे, है ना? और वो है मुकाशवा 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए और इसलिए उन्हें फजल दिया गया कि वो तख्त के सामने खड़े हों। तो इसलिए ये जो इस वक्त 10 आयत है, इसमें जो गालिब आने वाले हैं वो शहीद नहीं है, है ना? वो वो जो ग्रोह उठा लिया गया है उसी की बात जो है हो रही है। यानी जो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अपनी जानें दी, गवाही क्या कहते हैं, गवाही के कलाम पर के बाइस उनको कत्ल किया गया या जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के यानी सारे ही शागिर्द सिवाय यूहन्ना अरब के शहीद हुए थे, है ना? वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन भी थे और ये शहीद भी थे। लेकिन ये जो अब पीछे रह जाएँगे वो गालिब आने वाले नहीं हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जहाँ पे 10 आयत जो है ये उन्हीं यानी दुल्हन की या मर्द बच्चा जो है उन्हीं की बात हो रही है कि वो आसमान तक पहुँचा दिए गए और वो गालिब आए थे। तो इसलिए ये उनकी बात हो रही है 10 आयत में। अम, क्योंकि ये गालिब नहीं ये गालिब आए थे और एक और हवाला है इब्रानियों 2 बाब उसकी 11 आयत में भी लिखा है कि जो इसलिए कि पाक करने वाला, पाक होने वाला सब एक ही असल से हैं। इसी बाइस वो इन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। यानी उस तरह के लोग जो खुदा के तख्त तक पहुँचाए गए, यानी तख्त के ऊपर पहुँचाए गए, ये वो लोग हैं जो गालिब आने वाले हैं, जो उसकी असल से हैं, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हैं। हमने महरूमियों के खत में पढ़ा था कि जो बेटे हैं यानी जो रूह की हदायत से चलने वाले हैं या मसीह की तरह हैं जो वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है और वो उस तख्त तक पहुंचाए जाएंगे, है ना? तो इसलिए ये वो लोग हैं जो गालिब आने वाले हैं। बाकी जो लोग हैं जो हमने उस दिन सीखा कि जो इसराइली हैं जिनके ऊपर मोहर हुई थी 1,44,000 वो गालिब आने वाले नहीं हैं, नहीं होंगे मतलब। इसलिए उनके बारे में कहीं ये नहीं लिखा कि वो गालिब आए।
وہ ان پہ مہر ہوئی، وہ اس مصیبت کے دور میں سے، یعنی بڑے قہر کا دور جو تھا ہوگا، اس میں سے بچائے جائیں گے اور وہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے صرف غالب آنے والے وہ ہیں جہاں پہ بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے فتح حاصل کی، جیت حاصل کی، تو یہ دولن کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ یاد رکھیں ہم سب یہ کہ غالب آنے والے صرف جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی دولن ہے، یا یہ مرد بچہ جو ہے نا۔ تو 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر اس وقت خوشی ہوگی۔ آسمان پہ کیا ہے؟ اس وقت خوشی منائی جا رہی ہوگی، کیونکہ وہ جو 7 سالہ مصیبت کا دور نیچے زمین پہ ہوگا، آسمان پہ اس وقت جو مرد بچہ اٹھا لیا گیا تھا، یا خدا یسوع مسیح کی دولن جو تھی وہ تھی نہیں ہے، مطلب اٹھا لی جائے گی۔ وہ اس وقت شادی کا جو جشن ہے، یا شادی جو ہے، یا ہم اس کو وہ کیا کہتے ہیں، جو نکاح کا ایک ہوتا ہے، وہ جشن جو ہے وہ آسمان پہ اس وقت چل رہا ہے، یعنی خوشی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ لیکن زمین پہ اس وقت جو کیونکہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ نیچے گرا دیا گیا، تو اس وقت لکھا ہے 12 آیت میں کہ خشکی اور تری پر افسوس، کہ ابلیس جو ہے بڑے قہر سے جو ہے وہ زمین پہ اترا ہے، یا اس کو گرا دیا گیا ہے نا۔ تو اس وقت زمین پہ کہہ لیں مصیبتوں کا دور ہو گیا، لیکن آسمان پہ خوشی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ اور جو 13 آیت ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب کے اس کو پر جو ہیں وہ دیے گئے۔ تو اس کے لیے ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، سریہ آپ اور مایا آپ نکالنا، خروج کی کتاب 19 باب اور 4 آیت اس کی ہم پڑھتے ہیں کہ اس عورت کو جو عقاب کے پر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جی سریہ، خروج کی کتاب اس کا 19 باب اور 4 آیت۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں دی آ رہی نرگمن نا ایڈوس کوچ کی جو کتاب ہے، ایکسیڈس، ایکسیڈس، ہاں، اس کا 19 باب اور اس کی 4 آیت آپ پڑھنا، کہ یہ جو پر ہیں، جو عقاب کے پر ہیں، اس کے کیا میننگ ہے۔ ہاں کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے مصریوں کو کیا کیا تم کو مانو وکاؤ پکشی کے پنکھ پر چڑھا کر اپنے پاس سے لے آیا ہوں۔ آمین۔ ہاں جی، سریہ آپ پڑھیں گے کیا؟ وفا آ گئی، وفا آ گئی۔ اوکے ٹھیک 38 ہے، تھا نا 4۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ محل اردو میں کوئی اور اگر کر سکتا ہے، سنیا آپ؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 19 باب اور جی اس کی بھابی جی، 4۔ اوکے جی، ہاں جی، میں کہہ رہی تھی اردو میں کوئی نہیں ہے تو آپ اگر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھابی جی، میں کرتی ہوں۔ خروج کی کتاب 19 باب اور اس کی 4 آیت میں، خروج جس اس میں کے ساتھ 19 باب اور اس کی 4 آیت، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عقاب جو ہیں، جو اس چیپٹر میں ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں مل رہا ہے، یہ پہلے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عقاب کے پر لگا کے خداوند ان کو وہاں سے نکال کے لے آئے۔ جی سنیا پڑھنا۔ کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، کہ وہ اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ بھابی آگے بھی پڑھوں؟
पढ़ लो। हाँ, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरे खास मुमकिलत ठहरोगे और कोई, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमकिलत और एक मुकद्दस कौम होगे। हाँ जी, ठीक है, इनमें बस प्रेज ठीक लॉर्ड। है। हाँ, यानी ये हमें मिलता है कि खुदावंद जो है वो उनको किस तरह कह लें उनकी परवरिश की। हम सब जानते हैं कि बियाबान में थे वो इसराइली, तो खुदावंद ने इसराइलियों को बियाबान में किस तरह से उनकी परवरिश की, है ना? किस तरह से उनकी जैसे कह लें मना के ज़रिए, और किस तरह से उनको बचा के रखा, महफूज रखा। कोई जंग होती थी तो खुदावंद उनकी तरफ से होके जंग जो है वो करता था, है ना? तो खुदावंद जो है उस बियाबान में उनकी कह लें कि हिफाजत के लिए, या किस तरह उकाब के परों से परों पर बिठा के उनको उसमें से बियाबान में से निकाल के ले आया था। तो इसी तरह ये अब जो ये कलीसिया है, या ये औरत जो है जो ज़मीन पे रह जाएगी, तो वो बियाबानी उनका जो आज़माइशों का कह लें जो एक सफ़र जो है वो शुरू होगा। तो इस पीरियड में ये जो 3.5 साल का अरसा बनता है, 1 लाख कह रही हूँ, ये जो दिन है तो इसमें खुदावंद उनकी परवरिश करेगा, जैसे कि इसराइलियों की थी बियाबान में, जिस तरह खुदावंद ने उनकी हिफाजत की थी, और खुदावंद ने उनको उकाब के परों पर बिठा के अपने पास ले आया था, है ना? और खुदावंद ने मिस्रियों से उनको किस तरह बचा के रखा था। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावंद ये जो इस वक़्त यानी उस वक़्त रह जाएँगे ज़मीन पे, जो कह लें कलीसिया होगी, या वो बाकी की औलाद जो है, किस तरह से उसको बचाएगा इब्लीस से, और उसी अज़दहा से खुदावंद उनको बचाएगा। एक और हवाला है, इसी का कह लें इस्तिश्नाम 32 बाब और उसकी 11 आयत से, वहाँ पे भी हमें मिलता है कि खुदावंद किस तरह से अपने जो लोग हैं उनको बचाता है, या उनकी परवरिश जो है वो करता है, या किस तरह मुश्किलों परेशानियों में। ये महल आपको शायद जो पुराने हैं थोड़ा उनको याद होगा कि जी सनिया पढ़ेंगे आप माया? इस्तिश्ना 32 बाब उसकी 11 आयत से हम 14 आयत तक पढ़ते हैं। इस्तिश्ना मीन्स या डिटरमिन, हाँ, हाँ, डिट्रॉनमी कौन से बाब? 32 32 बाब उसकी 11 आयत। ओके। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। आगे भी पढ़ू दी। बस ठीक है। यानी खुदावंद जो है मुश्किलों परेशानियों में, जैसे हमने ये हला के हमने थोड़ा सीखा था कि वो खुद ही उनको मजबूत करने के लिए, या मुश्किलों में से या परेशानियों में से जो सिखाने के लिए, ताकि वो उड़ना सीखें, तो वो घोंसले को हिला के अपने बच्चों पे मंडलाता रहता है। यानी मुश्किलों परेशानियों में, आजमाइशों में खुदावंद जो है वो हमारे साथ होता है। और जैसे कौब अपने घोंसले को हिला कर, तो यहाँ पे भी इस चीज को हम देख रहे हैं कि जब बियाबानी सफर आता है, मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो खुदावंद हमारे साथ होता है। खुदावंद जो है उस पीरियड में, या उस मुश्किल में हमें क्या कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है, हमारी परवरिश कर रहा होता है, हमें उस मुश्किल में से, परेशानी में से बचा रहा होता है। और बचाव किस तरह होता है, हम ये थोड़ा सीखते हैं। दूसरा क्रंथियों 1 बाब उसकी 11 आयत, कि हमें कौन से वो, यानी ये तो खुदावंद कर रहा है, हमें उस पीरियड में क्या करना है, मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में हमें क्या करना है जो हमें बचा सकता है, या हमें नया हौसला या नई ताकत जो है वो देता है। दूसरा क्रंथियों 1 बाब
11 है। सही आवाज कट गई भाभी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 11 है। और अगर तुम कभी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें। यानी हम क्या कहते हैं, इस पीरियड में हमें शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद पे उम्मीद रखनी है। खुदावंद क्या करेगा, इससे अगर 10वीं आयत जो है उधर पढ़े तो, कि खुदावंद हमें छुड़ाता है, खुदावंद जो है हमें उस मुश्किल में से, परेशानी में से निकालता है या हमारी मदद करता है। तो उस पीरियड में हमें शुक्रगुजारी करनी है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, माया पढ़ो, दूसरा ग्रंथियों पहला बाप उसकी 10 और 11 आयत आप पढ़ लें। ठीक है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। आमीन। और दूसरा आमीन। भी नहीं बस ठीक है। वैसे तो है ये, इसमें सारा ये कि खुदावंद उस वक्त हमारी साथ है, या खुदावंद हमारी मदद करता है, तसल्ली देता है जब हम मुसीबतों में से, ये शुरू में ही पढ़े तो, दुखों में, मुसीबतों में से खुदावंद हमें गुजरने देता है, लेकिन वो उसमें हमारे साथ होता है, हमारी हिफाजत करता है। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद पे उम्मीद रखते हैं, तो खुदावंद उसमें से निकलने का कोई रास्ता या वो हमारी मदद करता है, वो हमारी परवरिश इसमें कर रहा है, हमें उसने संभाल के रखा हुआ था इस बियाबानी सफर में। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, कुलसियों 4 बाब उसकी 3 आयत। कुलसियों 4 बाब उसकी 3 आयत। यानी जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी और करते हैं, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा दौर खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, हाँ जी, और तो उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हाँ जी ठीक आगे है। भी पढ़ोगे? यानी वो कैद में है, जो पालूस रसूल है वो कैद में है, मुसीबत में है, तंगी में है, तकलीफ में है ना, दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन उसमें क्या वो कर रहा है, दुआ करने में मशगूल है। दूसरी आयत जो अगर इसके ऊपर जो हम पढ़े, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहें, यानी और साथ साथ हमारे लिए भी यानी दुआ किया करो। तो अगर हम इसमें यानी मुश्किल में, परेशानी में, क्योंकि देखें हम पालूस रसूल कैद में ही, ये मेरा खत जो है उसने सारे लिखे हैं, दुख में है, मुसीबत में है, तंगी में है, तकलीफ में है, कैद में है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। और पालूस और सलास को भी हम देखते हैं कि वो क्या थे, कैद में थे, बेड़ियों में बंधे हुए थे, लेकिन क्या कर रहे थे, सताइश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, शुक्रगुजारी जो है वो कर रहे थे। तो ये हमें, ये हैं वो कह लें कि उकाब के पर, या वो मुश्किल परेशानियों में जो हम दुआ करते हैं, और मुसीबतों में। जी सनिया पढ़ेंगे, या अगर उर्दू में जी उर्दू में, हाँ। कुलसियों 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत। एक मिनट। सॉरी। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले ताकि
मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूँ, कैद में। और हाँ जी, इसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजमी है। ठीक है। हाँ जी, तो मतलब ये है कि जो दुआ में मशगूल रहते हैं, जो खुदावंद के ऊपर उम्मीद रखते हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं, ये हमें कह लें कि महफूज रखता है, ये हमें बचा के रखता है। जब खुदावंद में हम क्या कहते हैं जुड़े रहते हैं, तो ये हैं वो उकाब के जो पर हैं कि खुदावंद के साथ हम जितना भी कह लें कि जुड़े रहें। एक और हवाला है फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़ना। फिलिपियों 4 बाब फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत से आप पढ़ लेना। 6 ना। ओके, मैं पढ़ूं? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। अभी आगे भी नहीं, बस ठीक है। जी माया पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आमीन। हाँ जी, तो ये क्या हमें संभाल के रखती है, क्या किस में हम महफूज रहते हैं जब हम खुदावंद क्या कहते हैं हर वक्त दुआ में मशगूल रहते हैं, हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यानी फिक्रों में भी अगर हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं और तब जो है खुदावंद का वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिलों और ख्यालों में यानी वो हमें मिलेगा। और उस दौर में से जैसे मुसीबतों में से जब हम निकल जाते हैं, तो अगर हमें खुदावंद पे उम्मीद हो या खुदावंद से उस वक़्त हम दुआ कर रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से उसमें से निकल आते हैं, या मैं कहूँगी कि हम बड़ी जल्दी से निकल आते हैं। नहीं तो बहुत कह लें सालों और वो लगते हैं जिनके पास उम्मीद नहीं होती है कोई, या वो दुआ नहीं करते, वो हर वक़्त नेगेटिव बोलते रहते हैं, या इसीलिए यहाँ पे लिखे कि ख्यालों को, हाँ, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद जो है मसीह में महफूज रखेगा। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों में, परेशानियों में अब जो लोग सिर्फ खुदावंद पे क्या कहते हैं एतमाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावंद जो है हमारे साथ है, खुदावंद इसमें से हमें निकाल लेगा, हमें उसमें उम्मीद है, तो वो क्या है, हम खुदावंद में महफूज हैं, खुदावंद हमें उसमें से निकाल लेगा। लेकिन जो हर वक़्त यही सोचते रहते हैं कि मुश्किल आ गई है, यानी उनके अंदर कोई तसल्ली नहीं है, उम्मीद नहीं है, जो अ, होनी चाहिए उन मुश्किलों में, परेशानियों में, तो फिर हम उसी में पड़े रहते हैं, उन्हीं मुसीबतों में, या हमारे पास एक मैं कहूँगी कि कुव्वत नहीं होती, ताकत नहीं होती। उस दौर में अगर ये लोग, वो जो उस वक़्त लोग होंगे, अगर वो दुआ और उसमें मशगूल नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो जो आज़माइश आई है उस वक़्त, वो उस वक़्त फिर खुदा उनका इनकार कर देंगे, क्योंकि उनके पास अपनी कोई एक जो ताकत होती है वो नहीं होगी। दुआ ही हमें वो ताकत देती है, कुव्वत देती है कि हम
जो मुसीबतें आती हैं, इस वक्त भी कह लें या उस वक्त आएंगी लोगों पे, तो वो खुदाम यीशु मसीह पे ईमान रखें कि खुदावन जो है हमें इसमें से निकाल लेगा। निकालने का ये नहीं मतलब होता, जैसे अब भी हम उस दिन भी मैं गवाही के तौर पे बता रही थी कि जब हम बीमार होते हैं, हमारे ऊपर वैसी वाली मुसीबत नहीं आ रही, जैसे कह लें कि जैसे सीरिया में या मसीहियों को सताया जा रहा है, लेकिन मैं अपने गवाही के तौर पे, तो ये जो हम कहते हैं कि खुदावन मुझे शफा दे, ठीक है, वो नहीं भी देगा, मुसीबत में है, दर्द में है, तकलीफ में है, बीमारी है, वो किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कोई छोटी-मोटी सड़ी दर्द हो रहा है तो उसमें हम स्टैंड लेते हैं। कैसी भी बीमारी आ जाती है, खुदावंद के जो लोग हैं वो स्टैंड जब लेते हैं और खुदावंद से उम्मीद रखते हैं और उसमें खुदावंद बचा ले, ठीक है, ना बचाए तब भी ठीक है। जैसे मैंने उस दिन भी बात की कि हमारे जो मुकद्दसीन हैं, पुराने अहदनामे के भी और नए अहदनामे के भी, हम देखते हैं कि वो बीमारी में मरे, है ना? लेकिन वो हमने नहीं सुना, क्या पढ़ा कहीं बाइबल में कि वो कहीं किसी डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास गए। तो ये उसमें जान भी चली जाए तो उनको कोई डर नहीं है, वो क्योंकि महफूज़ समझते हैं खुदावंद में, उनकी जो सोचें हैं वो खुदावंद के ऊपर लगी हुई हैं, वो डगमगाते नहीं हैं, वो दो दिले नहीं हैं, ओ कि खुदावंद ने ना बचाया तो क्या होगा? तो उस मुसीबत में भी या इस वक़्त भी जो लोग इस तरह का जिनका ईमान है कि खुदावंद ठीक है मुझे इस मुसीबत में से निकाल ले, वो ना भी निकालेगा तो मैं खुदावंद से दूर नहीं जाऊँगा या मैं किसी जो इंसानी मदद है वो नहीं लूँगा, मैं खुदावंद पे भरोसा रखूँगा। उसके लिए मुझे देर लगे या जल्दी हो जाए काम मेरा, लेकिन मैं खुदावंद से ही जो एक मदद है वो माँगूँगा। तो ये उस दौर में भी वो लोग जो हैं अगर खुदावंद पे भरोसा करेंगे तो वो खुदावंद में महफूज़ रहेंगे। उनका दिल नहीं घबराएगा। इसलिए जब ऐसी मौत उनको मरना पड़ेगा किसी भी तरह के, क्योंकि अभी मकाशवा 20 बाब उसमें क्या हमने पढ़ा कि कह लें मौत जो है वो इस हिसाब से अगर हम देखें, जो हमें मकाशवा 20 बाब उसकी कौन-सी आयत है? 4 आयत में ये मिलता है कि उनके सर जो हैं वो काटे जाएँगे। जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के सबब से शहीद होंगे, उनके सर जो है वो कलम किए जाएँगे। तो इसलिए वो बड़ी, मैं कहूँगी कि क्योंकि वो खुदावंद पे भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो ये सब कुछ कर सकेंगे। उनको एक ताकत खुदावंद की तरफ से मिलेगी और खुदावंद की एक इत्मीनान या एक तसल्ली कि हम खुदावंद के पास जा रहे हैं या उनके अंदर एक तसल्ली होगी जो समझ से बिल्कुल बाहर है। तो यही समझ या ये खुदावंद के साथ जो हमारा रिश्ता है या तसल्ली, इत्मीनान जो है खुदावंद पे अब हमें है, तो हम उस मुसीबत में से नहीं गुज़रेंगे। क्योंकि ये जान तो हथेली अभी हमने रखी हुई है ना? तो इसलिए ये लोग जो अब उस मुसीबत में से, तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं, अगर ऐसा खुदा के साथ उनका रिश्ता है, वो हर वक़्त दुआ में और उसमें मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, तो उनको जो है एक तसल्ली, इत्मीनान जो है, वो उनके पास है। लेकिन जो दो दिले हैं, जो दुनिया के साथ भी चलते हैं और खुदावंद के साथ भी चलते हैं और दुआ जो है जैसा टाइम हमें देना चाहिए, तो फिर उनके पास एक कुव्वत जो है वो ताकत जो है वो नहीं होती। वो ज़रा-सा हवा चली, ज़रा-सी मुसीबत आई तो वो डोलना शुरू हो जाते हैं, घबराना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको पता है जावेद बार-बार कहता है, ईसाई को बड़ा ही कोट करता है ना कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि खुदावंद को पता है हमारा दिल घबरा जाता है। इसलिए खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, दुआ करते रहेंगे और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते रहेंगे, तो हम मज़बूत रहेंगे, हम महफूज़ रहेंगे। उसमें हमें जान भी देनी पड़े या चली जाए हमारी, तो हमारे पास एक तसल्ली, एक इत्मीनान होगा। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये जो उकाब के पर हैं, ये इस चीज़ को पेश करते हैं, दुआ कह लें, रोज़ा कह लें, शुक्रगुज़ारी कह लें, तो ये बेदार रहना है, ये हम बेदार हैं। लेकिन अगर हम सो रहे हैं, हमें
कोई फिक्र ही नहीं है कि मुश्किल आई है, घर में सांप घुसा हुआ है, सर में घर में इब्लीस घुसा हुआ है, शैतान घुसा हुआ है, और हम अपने वो वही नाच गान वही उन कामों में मसरूफ है और दुआ नहीं करते, है ना? उसको शैतान को जो हमारे घर में या हमारे बदन के अंदर घुस आया है बीमारी की सूरत में या कोई भी तकलीफ है हमें, तो अगर अब हम दुआ नहीं करते, खुदा उन पे भरोसा नहीं रखते, तो वो दौर जो आएगा उसमें भी फिर हमारे पास वो फजल जो है या खुदा का कलाम ही उस दिन हमने सीखा था कि ये हमें संभाल के रखता है। खुदा का कलाम जो है हमें महफूज रखता है, और जब भी हम बोलते हैं यानी गीत गाते हैं या दुआ करते हैं, ये हमें संभाल के रखता है ना? तो उस वक्त ये लोग जो करेंगे वो खुदावंद में महफूज रहेंगे, और ये खुदावंद जो है कह लें कि इस तरीके से उनकी परवरिश जो है या उनको संभाल के रखेगा, है ना? महफूज रहेंगे वो खुदावंद। और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि उसके मुंह से नदी की तरह पानी बहा, और ये नदी जो है या नदी पानी जो है या सैलाब जो है, ये भी मुश्किलों परेशानियों को पेश करते हैं, है ना? यानी औरत के ऊपर या उस वक्त जो वो 3.5 साल का अरसा होगा, खुदावंद पे जो इन मुसीबतों में यानी इस तरह से खुदावंद उनकी परवरिश करेगा, जो दुआ में उस वक्त में दुआ में लगे रहेंगे, मशगूल रहेंगे, खुदावंद उनकी परवरिश जो है वो करता रहेगा, खुदावंद उनको संभाल के रखेगा, है ना? तो ये नदी जो है ये जो 15 आयत है, उसने जो सांप है उसने औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहा दिया। तो ये नदी जो है अम, अ, सनिया आप और माया वो निकालना, ज़बूर जो है 18 उसकी 4 जो आयत है उसमें इस नदी का कह लेंगे सैलाब का हमें जो है वो मिलता है। ज़बूर 18 उसका 4 आयत पढ़ू दी। पढ़ो। हाँ। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधम की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। क्या आगे भी पढ़ू? हाँ जी, आगे भी पढ़ू दी। पढ़ो। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने हाँ जी, संकट में मैं बस ठीक है। चौथी आयत में है कि मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। तो यहाँ पे ये जो सैलाब हैं या ये इस पानी को या नदी को पेश कर रहे हैं, और बेदीनी जो है उस वक्त यानी वो एक कह लें कि दौर जो होगा कि जो जिनका कोई गैर मज़हब के कह लें लोग जो हैं उस वक्त होंगे। ये जब वो 7 साला मुसीबतों का दौर जो है या पहले 3.5 साल का अरसा जिसमें ये मसीही जो हैं या वो अक्लमंद कवारियाँ या वो होशियार कवारियाँ जो हैं, ज़मीन पे रह जाएँगी। उस वक़्त बाकी जो हैं लोग, ये तो खुदा उनको मानने वाले होंगे, लेकिन बाकी जो हैं गैर मज़हब कह लें, बेदीन जिनका कोई ईमान नहीं होता, कोई वो या साफ़ ही हम कह लें कि शरीर लोग या शैतान के लोग जो हैं, वो होंगे उस वक़्त। तो वो इनको सताएँगे या वो इन पे ज़ुल्म-सितम जो है करेंगे किसी न किसी तरीके से। ये और जैसे कह लें शैतान की ये बुरी तासीरें या ये बदरूहें जो हैं, वो उन गैर कौमों वालों या जो बेदीन लोग हैं जिनका कोई ईमान नहीं है, उनके ज़रिए से या उनके अंदर से हो के कह लें कि इन लोगों को जो उस वक़्त ज़मीन पे रह जाएँगे वो इस इन पे ज़ुल्म-सितम करेंगे या
वो सैलाब की तरह या पानी की तरह, यानी मुसीबतें इस तरह से उनके ऊपर आ पड़ेंगी। ये जो लोग ज़मीन पे उस वक़्त जो मसीही जो है वो रह जाएँगे। तो बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया, यानी जो गैर मज़हब के लोग हैं या जिनका कोई दीन-ईमान नहीं है, ये उनकी बात हो रही है। उनकी तरफ से मुसीबतें जो हैं उनके ऊपर आएँगी या उनकी तरफ से वो सताए जाएँगे। तो इसलिए ये नदी जो है, ये यहाँ पे इस चीज़ को पेश कर रही है कि उनके हाथों ये ज़ुल्म-ओ-सितम जो है वो सहेंगे, यानी एंटी क्राइस्ट के जो आगे, क्योंकि हर जगह उसने तो नहीं होना आगे उसके करिंदे जो हैं वो इंसानों के अंदर से होके इन लोगों को सताएँगे पूरी दुनिया में। जहाँ-जहाँ भी मसीही लोग होंगे, तो ये जो बेदीन लोग हैं या उस शैतान के बुरी तासीरें हैं या बुरी रूहें जो हैं, बदरूहें जो हैं, वो उन पे ज़ुल्म-ओ-सितम करेंगे और ये पानी की नदी की तरह कह लें कि ये मुसीबतें जो हैं उनके ऊपर आएँगी, वो जो कह लें ज़मीन पे उस वक़्त रह जाएँगे, है ना? मुसीबतें जो हैं ये उस चीज़ को पेश कर रही हैं, है ना? और मेरे ख़्याल एक और हवाले में भी हम पढ़ते हैं यसाया 15 बाब उसकी 19 आयत में देखते हैं हम। वहाँ पे भी ये एक यानी हमें ज़िक्र मिलता है, ये जो पानी है या नदी है या सैलाब जो है, वो किस चीज़ को पेश करता है? मुसीबतों को पेश करता है, आज़माइशों को। यसाया यसाया 59 चैप्टर 59 हुँ, यसाया 59 वर्ष वर्ष 19 18 और 19 आयत आप पढ़ना कि वो 18 आयत में। पढ़ूंगा भी। हाँ, हाँ। वो इनको इनके अमाल के मुताबिक अजर जजा देगा और अपने मुखालफों पर कहर करेगा और अपने दुश्मनों को सजा देगा और जजायरों को बदला देगा। तब मगरिब के बशिंदे खुदावन के नाम से डरेंगे और मशरिक के बशिंदे उसके जलाल से, क्योंकि वो दरिया के सैलाब की तरफ आएगा जो खुदावन के दम से रवा हो। हाँ, तो यहाँ पे भी हम जो सैलाब है, हाँ जी। जी, माया आप पढ़ना। यसाया 59 चैप्टर उसकी 18 और 19 आयत में हम होता है कि ये जो सैलाब है या पानी जो है या नदी जो है, वो भी मुसीबतों को और परेशानियों को पेश करती है या आज़माइशों को। ओके, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मेरा समय लग गया है। कि ये जो है यानी यहाँ पे नदी का जो ज़िक्र मिल रहा है, ये मुसीबतों को, आज़माइशों को पेश करता है, लेकिन ये खुदावंद जो है इस मुसीबतों के दौर में या इस परेशानी के दौर में, क्योंकि वो लोग जो हैं, जो अब दुआ में मशगूल नहीं है, उस वक़्त जब मुसीबत का दौर आएगा, तो दुआ में और कह लें कि उसमें मशगूल होंगे ये लोग या उस वक़्त ये खुदावंद के आगे गिरहज़ारी करेंगे मुसीबतों के दौर में, तो खुदावंद जो है उन लोगों को बचाएगा, लेकिन सबको नहीं। यानी उसमें से बेवकूफ़ कवारियाँ जो हैं, जो उस दौर में भी उनके पास ये एक कलम काशफ़ा या ये एक फ़ज़ल जो है उनके पास नहीं होगा, तो वो जो हैं उस वक़्त ये खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। लेकिन जो उस वक़्त दुआ में और उसमें शुक्रगुज़ारी में खुदावंद के साथ जो जुड़े रहेंगे, उन लोगों को खुदावंद जो है महफ़ूज़ रखेगा और उस मुसीबतों के दौर में से खुदावंद उनको निकालेगा। निकालेगा इसी तरह के मतलब उनको जान जो है वो देनी पड़ेगी, है ना? लेकिन खुदावंद ये फ़ज़ल उनको देगा या ये एक ताकत देगा कि खुदावंद यीशु का वो इनकार नहीं करेंगे। यानी वो चिप जो है या वो निशान जो है वो लोग नहीं लेंगे। तो इसलिए खुदावंद उनको एक भारी कह लें कि एक वो एक ताकत देगा जिसकी वज़ह से वो
اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن مصیبتوں میں سے ان کو گزرنا پڑے گا. جیسے تو لیکن خداوند ان کو یہ فضل جو ہے وہ دے گا کہ خداوند اس میں سے جو مصیبتوں کا دور ہے اس میں خداوند کہ وہ ان کو خداوند یسوع مسیح کا انکار نہ کریں، ہے نا. تو یہ ایک کہہ لیں ندی کا یہ مطلب ہے نا. لیکن خداوند جو ہے اس وقت زمین یعنی اس عورت کی مدد کرے گی. تو یہ زمین جو ہے اس وقت اس چیز کو پیش کری ہے کہ خداوند ان کی پرورش کرے گا، خداوند ان کو سنبھال کے رکھے گا. تو اور 17 آیت جو ہے، اور استحق عورت پر غصہ آئے اور اس کی باقی کی اولاد سے جو خداوند کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ کلیسیا جو ہے یا یہ چرچ جو ہے اس کے یعنی پلوٹھا جو ہے یعنی جو پہلا پھل ہے یعنی مرد بچہ جو ہے وہ آسمان کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہ عورت جو ہے اس کی باقی کی بھی اولاد ہے. یعنی کلیسیا میں سے اور لوگ بھی ہیں، چرچ میں اور لوگ بھی ہیں جو ایک کہہ لیں کہ اس بیٹے کی طرح یعنی وہ خداوند کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں. ان کے کپڑوں پہ داغ ہیں جب خداوند یسوع مسیح لینے آیا. تو اس دور میں وہ کیا کریں گے؟ ہم نے وہ اس میں مکاشفہ اس میں پڑھا 7 چیپٹر میں اور 20 میں بھی ہے نا کہ انہوں نے اس دور میں کیا کیا، برے کے لہو سے اپنے کپڑوں کو دھویا، اپنے جو روب تھا اس کو دھویا یسوع کے خون سے. یہ یعنی انہوں نے اپنا خون بہایا یا انہوں نے اپنی جانیں جو تھیں خداوند یسوع مسیح کی خاطر دیں، تب جو ہیں وہ یعنی تو خداوند کے تخت کے سامنے تک جو ہے ان کو پہنچا دیا گیا ہے نا. تو اس لیے یہ جو باقی لوگ جو زمین پہ رہ گئے یعنی باقی کی جو اولاد ہے یعنی بیٹا آسمان تک پہنچا دیا گیا، لیکن کو جو باقی کی اولاد تھی جو خداوند کے حکموں پہ عمل کر رہی ہے، خداوند ان کو بھی جو ہے محفوظ رکھے گا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کریں گے. وہ اس دور میں دعا میں اس میں مشغول رہیں گے اور خداوند ان کو بھاری جو کہہ لیں کہ فضل جو ہے وہ دے گا. یہ ہے کہہ لیں کہ عقاب کے پر دعا اور روزہ یا پرستش کرنا خداوند کی، یہ عقاب کے پر ہیں جس کو اس دور میں خداوند جو ہے اس کی پرورش کرے گا. دعا اور یہ باقی کی اولاد جو آپ کو یاد ہوگا سنیا میرا حال آپ نکالنا آیا، ہم نے اس میں پڑھا تھا مکاشفہ جس میں وہ شہیدوں کا دوسرے چرچ کے سمرنا کی جو کلیسیا تھی یعنی وہ اس دور میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں سے گزری، تو خداوند نے ان کو کہا کہ وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وفادار رہے جان دینے تک، ان کو خداوند نے زندگی کا جو تاج ہے وہ دیا. جی وہ پڑھنا سنیا اور مایا مکاشفہ دوسرا باپ اور اس کی کلیسیا کا پیغام اس کی جو محلتا سائت ہے نا، دس آیت دوسرا چیپٹر جی مکاشفہ دوسرا چیپٹر 10. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. جی ابھی پڑھوں؟ پڑھو. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پریز لارڈ. پریز دی لارڈ ہے نا. تو یہ جو 10 دن کی مصیبتیں ہم نے سیکھا تھا پیچھے کہ یہ یعنی گنے ہوئے دن ہیں، یہ تھوڑے دن ہوں گے اور یہ
इसमें खुदावंद के लिए जो वफादार रहेंगे और खुदावंद का इनकार नहीं करेंगे, उनको जिंदगी का ताज जो है वो मिलेगा। जी माया, आप पढ़ेंगे? काशवा 2 बाप उसकी 10 आयत। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हाँ आमीन। जी, आमीन। हाँ जी। तो ये जो मुसीबतों में, उन तकलीफों में, यानी किसी भी तरह हो रहा है, देखिए आजमाइशें आएंगी, अब भी आ रही हैं मसीहियों पे। तो जो जान देने तक वफादार रहेगा, उसको जिंदगी का ताज जो है वो दिया जाएगा, है ना? तो उस दौर में भी, यानी जो जान देने तक वफादार रहेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह का किसी भी तरीके से इनकार नहीं करेगा, उसको जिंदगी का ताज जो है मिलेगा। और ये आजमाइशें जो हैं वो तरह-तरह से आएँगी, कैद में डाला जाएगा, या उनके सर जो है कलम किए जाएँगे। और आपने शायद सबको शायद ना पता हो, लेकिन शायद कुछ लोगों को पता हो कि उन्होंने मसीहियों को सताने के लिए जो है, उनको महफीफा कैंप कहते हैं, वो बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में बने हुए हैं। जहाँ-जहाँ ये कह लें कि अ, उसको अभी, जैसे आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे रेफ्यूजी कैंप कह लें, या इस तरह के कैंप जो हैं, वो कोई भी चीज़, सुनामी आ गई है या कुछ उस दौर में जो कह लें मुसीबतें आएँगी, तो लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा या एक जगह रखा जाएगा उनकी मदद के लिए। लेकिन वहाँ पे ये कह लें कि एक इस तरह का, कह लें कि एक सिस्टम या एक वो बनाया गया है कि जो भी उनको चिप जो है या ये सब कुछ लेना पड़ेगा, जो नहीं लेंगे या जो उस वक़्त एक सामने रखा जाएगा कि उनको खाना मिलेगा, जो वो चिप लेंगे। और जो खुदाम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन जो नहीं लेंगे वो चिप, खुदाम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जैसे एक वो, आज मुझे याद नहीं रहा, लेकिन चलिए आगे मैं उसको एक पिक्चर जो है वो एक सिखाने के लिए या आपको बताने के लिए, ताकि हमें पता हो, या हम अपने बहन-भाइयों को जो मसीह में इस तरह से नहीं चल रहे वफ़ादारी से, है ना? तो उनको पता हो कि इस तरह से ज़ुल्म-सितम होंगे। तो वो सर कलम करने के लिए, जैसे पुराने दौर में कहते हैं कि एक वो मशीन सी, या पता नहीं, वो एक टोका जैसा होता था, है ना? और लटा देते थे, और वो सर जो है कलम कर दिया जाता था, है ना? धड़ से अलग हो जाता था। तो वहाँ वहाँ पे रखे हुए हैं अभी से। आपको अगर इस तरह का कोई नॉलेज है, मैं तो ऐसी देखती रहती हूँ। तो वहाँ पे वो रखा हुआ है, वो मशीन जैसी जो होती है ना? जिस पे सर जो है वो कलम जो है वो किए जाएँगे। तो खुदावंद उस दौर में अगर वो लोग जो हैं, जो अक्लमंद कवारियाँ होंगी, उनको ये, अगर वो दुआ में या उसमें ठहरे होंगे, तो खुदावंद फ़ज़ल देगा, वो तसल्ली देगा कि उस मुसीबत के दौर में से वो गुज़र सकें, या उसमें से फ़तह जो है, या कह लें कि खुदावंद जो है, उनको इतना हौसला या समझ जो है, वो देगा कि उस मुसीबत के दौर में जो कैद में हैं या किसी भी तरह से आज़माइश में हैं, उनके ऊपर आएगी, तो खुदावंद उनको उसमें से निकालने का जो रास्ता है या फ़ज़ल जो है वो देगा। लेकिन उनको जान देनी पड़ेगी, ये बाइबल हमें साफ-साफ बताती है कि उस दौर में से कुछ लोग ये समझते हैं कि हम उस दौर में बच जाएँगे, जैसे अब चिप के ये वैक्सीन के बगैर बच गए हैं, लेकिन वो वाला दौर वो नहीं होगा कि उसमें से हम चिप ना लें और वो लोग बच जाएँ। ये वो दौर जो है, वो दौर नहीं होगा, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है। अब तो ये फ़ज़ल का दौर है, या खुदावंद पाखरू ज़मीन पे है। लेकिन उस वक़्त जो है, क्योंकि कलाम में जो लिखा है वही सच है कि वो उस तख्त के आगे पहुँचाए जाएँगे। 20 चैप्टर में हम ये देखते हैं, जिन्होंने जिनके सर काटे गए हैं, वो तख्त के आगे होंगे, है ना? और ये कहीं पे भी जो बहुत, मैं कहूँगी कि अम,
ये जो मूवीज बनाते हैं जी, रैप्चर हो गया और लोग जो हैं किसी न किसी तरीके जहाज से या उससे किसी तरीके बच गए हैं, लेकिन मसीही जो हैं वो नहीं बचेंगे। उनको खुदाम यीशु मसीह की खातिर उस वक्त जान जो है वो देनी ही पड़ेगी, तब वो उसमें पहुंचेंगे। क्योंकि बाकी जो दुनिया रह जानी है जमीन पे, लोग जो हैं वो आगे चल के हम 13 चैप्टर में देखेंगे कि बाकी जो है वो जमीन पे वो शरीर लोग या शैतान के लोग जो हैं वो ज़मीन पे होंगे। और ये औरत जो है या कलीसिया जो है, किस में तब्दील हो जाएगी? वो वेश्या की जो सूरत है, या ये कलीसिया जो है, ये दोनों बच्चे कह लें जब 2 तरह के, यानी पलोठा और जो बाकी की औलाद जिन्होंने अपनी खुदा यीशु की खातिर जान दी, वो लोग तो बाकी तो वो लोग रह जाएँगे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह का इनकार कर दिया, है ना? इसलिए उनका खुदा यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता या कोई वो नाता नहीं होगा, वो सारे चिप ले लेंगे। ये चर्च जो है या ये औरत जो है, बाकी लोग जो हैं, इसका मतलब है कि वो कौन होंगे? वो शैतान के लोग हैं। जो वो चिप ले लेंगे वो शैतान के लोग होंगे, क्योंकि उसकी मोहर जो है उनके ऊपर लग गई है। अब हमारे ऊपर किन की मोहर लगी है, किसकी मोहर लगी है? खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए हम बचेंगे या हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, तो हमें जो मोहर लगी हुई है उसको खुद ही हम करेंगे, उसकी सील तोड़ेंगे लेकिन खुदावंद नहीं करेगा। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं तो हम उस हसार में से या उसकी जो महफूज हमें करता है उसमें से खुद ही निकल जाएंगे, है ना? तो और कोई नहीं होगा तरीका, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जान देनी पड़ेगी। अब वो कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे ये हमें 20 चैप्टर में मिलता है कि उनके सर कलम होंगे, यानी सर काटे जाएंगे। तो बाकी जो है वो चिप ले लेंगे, तो इसलिए वो तो मसीही, मैं कहूंगी कि वो तो रहे ही नहीं, है ना? वो तो इब्लीस के बन गए या शैतान के वो हो गए। तो इसलिए उस वक्त जमीन पे जो हालत है, या वो क्या कौन, ये औरत जो है वो एक वेश्या की सूरत इख्तियार कर लेगी, या कसबी, या ये आगे चल के हम देखेंगे इस औरत को जो अस्ताहा की टैलेंट के तब्दील हो गई, शैतान की जो है वो बन गई। तो इसलिए ये हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन आज का ये था कि हमने सीखा कि नदी का क्या मतलब है, और उकाब के पर जो है उसका क्या मतलब है, हमने सीखा, है ना? और खुदावंद जो है यानी हम्म, जो आसमान तक पहुंचाए गए, यानी 11 आयत में, कि वो गालिब आने वाले हैं, वही वो मर्द बच्चा है। और उस वक्त आसमान पे खुशी मनाई जा रही होगी, यानी दुल्हन की शादी होगी। और लेकिन जमीन पे उस वक्त मुसीबतों का दौर जो है वो होगा। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फजल दे कि अब इस दौर में, जो कि फजल का दौर है, जो कि खुदावंद हमारी पूरी सॉरी हमारी मदद हो रही है, खुदावंद के फरिश्ते हैं, खुदावंद पाक रूह है हमारे साथ, है ना? खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जोर है, ताकत है, वो हमें सबको तैयार कर रहा है ना? तो इसलिए हम सब जो हैं अपने बदनों को पेश करें, खुदावंद को दें कि खुदावंद हमें अम, उसकी मानिद, हम यीशु की मानिद बने, है ना? तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फजल दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सनिया। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको बड़ी कसरत से और ज्यादा इस्तेमाल करे। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमसे किया है, ताकि हम लोग अपनी रोज बरोज जिंदगियों को बदलें। खुदावंद का इसके लिए शुक्र करते हैं। प्रेज लॉर्ड। अब हम लास्ट प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, Yes, थैंक यू God, जीसस, yes, God. थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद। तू मेहरबान खुदा है, तू रहीम है, तू गयूर है, तू हमेशा कायम रहने वाला खुदा है, तू मुबारक है खुदावंद, तू मुबारक
है, तू हमेशा तक मुबारक रहेगा। खुदावन तेरा तख्त हमेशा कायम रहने वाला तख्त है। ओ प्रेज लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि जो खुदावन तू हमसे वादे करता है वो तो यकीनन पूरे करता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। हम इस लायक नहीं है कि खुदावन हम तेरे आगे खड़े भी रह सके खुदावन, हम इतने गुनाहों में फंस चुके होते हैं, लेकिन तू फिर भी खुदावन अपने लहू के जरिए खुदावन अपने लहू से हमें साफ करता है, धोता है, पाक करता है और हमें अपने साथ अपने गले से लगा लेता है, हमें शैतान के जबड़ों में से निकाल लेता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रा बा 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 रा रा खा रा 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 खा बा रे 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 रे। ओ रा बा 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 रा रा खा रा रे 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 रे। सी का रा खा बा रे 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 रे। ओ रा बा 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 रा 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 खा रा रे 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 रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। प्यारे खुदावन तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है खुदावन, तू हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद है खुदावन। तेरा कलाम हम तक पहुंचा, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हर तरह से, हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमारी जिंदगी में बख्शता है खुदावन। तेरे इस फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसकी बदौलत आज खुदावन हम तेरे कलाम की आवाज को सुन रहे हैं। आज खुदावंद हम तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं खुदावंद, और इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं खुदावंद। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जबकि खुदावंद हम तेरे फजल में प्यारे खुदावंद जी रहे हैं, तो खुदावंद हमें ये फजल बख्श दे, हमें हमारे पाँव को वो मजबूती दे दे, ताकि खुदावंद हम अपने ईमान पे खड़े हो जाएं और खुदावंद ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि प्यारे खुदावंद हमेशा हमारी नजरें तुझ पे लगी रहें और खुदावंद हम तुझे देखते रहें, ताकि खुदावंद जब तू आए तो खुदावन हम तेरे इंतजार के लिए प्रॉपर तौर पे तैयार हो जाएं और खुदावन हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा कोई झुर्री ना रहे, तो अपने लहू से साफ कर दे खुदावन। हमें रूहानी तौर पे रोज बरोज तैयार कर खुदावन, जहाँ कहीं रूहानी तौर पे कमजोर हो गए खुदावन, किसी गलती की वजह से, किसी गुनाह की वजह से खुदावन हमारा रिश्ता तेरे साथ कमजोर हो रहा है, तो खुदावन आज वो तू जोर बख्श दे। आज तू प्यारे खुदावन अपना हाथ बढ़ा और फिर से मजबूत कर दे खुदावन, हम तुझ में मजबूत हो जाए, तेरा लहू फिर से हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे। ओ यस लॉर्ड जीसस, ताकि खुदावन हम तेरी कुर्बत को फिर से महसूस करें और तेरी शुक्रगुजारियों के प्यारे खुदावन नजराने तुझे चढ़ा सके जो तुझे पसंद है। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे जलाल के लिए खुदावन, तू जलाली खुदा है, तो हम पे भी प्यारे खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर, हमारी जिंदगियां अपने जलाल से भर दे, तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में गहरे तौर पे काम करे, हमें अपने मसल कर दे खुदावंद। आज हम अपने आप को खाली कर देते हैं खुदावंद, अपने तेरे रूह से भरना चाहते हैं, तेरे जोर से भरना चाहते हैं, तेरे फजल से भरना चाहते हैं खुदावंद। खुदावन जी, ताकि हम तुझ में मजबूत हो जाएं, हम अपने फेथ पे खड़े हो जाएं, ताकि खुदावन जब तू लेने आए तो खुदावन हम तैयार हो खुदावन जी। और फिर खुदावन तूने कहा जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तो खुदावन आज इसके तो हम मांगते हैं खुदावंद, ताकि हम मजबूत हो और खुदावंद वो जिंदगी का ताज जो तूने हमारे लिए रखा है उसे रिसीव करें। यस लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में खुदावंद तो अपने वादों में तेरे खुदावंद पुख्ता है, हमेशा कायम रहते हैं तेरे वादे खुदावंद, अपने वादों के मुताबिक तू हम सबको प्यारे खुदावंद ब्लेस करना खुदावंद। आज जितनी जाने तेरे हजूर मौजूद है खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, जितनों तेरी आवाज को सुना है खुदावंद, तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, इनके रूहानी कान खोलना खुदावंद, रूहानी आंखें देना, ताकि वो तुझे देख सके और खुदावंद तुझे प्यारे खुदावंद जान सके कि तू हमसे कितना प्यार करता है। जब हम गुनाह में ही थे तब ही तूने हमें कबूल किया और तूने खुदावन हमें शैतान से बचा लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जब खुदावन हमने तेरी तरफ अपने कदम बढ़ाए तो खुदावंद वो नूर वो रोशनी बख्श दे जो तेरी तरफ जाती है खुदावन। तेरा कलाम हमें प्यारे खुदावंद वो रोशनी बख्श दे, ताकि हम तुझे जान सकें और खुदावंद तेरी प्यारे खुदा बताए हुए रास्तों पे चल सके खुदावंद, हम तेरे पीछे पीछे
तेरे प्यारे खुदावंद कदमों की रहनुमाई में चल सकें खुदावंद, तेरे पाँव के पीछे पीछे खुदावंद अपने कदम बढ़ाते जाएं और Yes. खुदावंद अपनी सलीब उठा सकें खुदावंद, ये तौफीक बख्श दे ताकि खुदावंद हम प्यारे खुदावंद लकड़ियों की सलीब में तुझे ना ढूंढे, बल्कि खुदावंद हम तेरी वो सलीब उठाएं जो तूने हमें कही है खुदावंद, उस सलीब को अपने कांधे पे उठा लें, यस लॉर्ड जीसस, और Yes. तेरे पीछे हो ले, क्योंकि यही तू चाहता है खुदावंद। हमें प्यारे खुदावंद हमारे दिलों में, हमारी रूहों में, हमारी जिंदगियों में बेदारी ले आ खुदावंद, तेरी Yes. रोशनी, तेरा नूर हम पे चमके खुदावंद, तेरा प्यारे खुदावंद फजल हम पे आ जाए, यस लॉर्ड जीसस। जहाँ कहीं कमजोर है, तेरी कुव्वत प्यारे खुदावंद हमें जोर बख्श दे खुदावंद, Yes. क्योंकि तू देने की कुदरत रखता है खुदावंद। तेरा हाथ हम पे बढ़े प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू, तेरा हाथ प्यारे खुदावंद हर जानदार को खुराक मुहैया करता है, तो खुदावंद तू हमें क्यों ना देगा प्यारे खुदावंद, हमें रूहानी फलों से मामूर कर, रूहानी नेमतों से भरपूर कर दे खुदावंद, हम शेर हो यीशु के नाम में, और खुदावंद तुझ में मजबूत हो जाए, जिस तरह तू हमें देखना चाहता है खुदावंद, उस तौर पे हमें तैयार कर। और प्यारे खुदावंद ये जो गला खुदावंद तूने प्यारे खुदावंद सिस्टर को बख्शा है खुदावंद, अपनी खादमा को दिया है खुदावंद, उन्हें और ज्यादा जोर बख्श, और ज्यादा अपनी तवानाई दे खुदावंद, सहून से उनके लिए बरकत भेज, ताकि वो और भी रूहों को बचाने का सबब बने। जबकि ये गला तैयार हो तो ये भी खुदावंद को बहुत से लाखों करोड़ों रूहों को बचाने का सबब बने, और ये सिलसिला कभी थमने ना पाए खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इस विजन के लिए जो तूने अपनी बेटी को दिया, इन्हें और ज्यादा खुदावंद अपनी प्यारे खुदावंद बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि Yes. इब्लीस शर्मिंदा हो, और हमारा यीशु नासरी हमारे जिंदगी बख्श प्यारे खुदावंद, तेरा कलाम जो वो फैलता जाए, यीशु को सारा जलाल देते हैं, क्योंकि तू ही जलाल के लायक है, तू ही बुजुर्गी के लायक है, यस लॉर्ड Yes. जीसस। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, अपने अपने घरानों के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू बरकत देने की कुदरत रखता है खुदावंद, तेरी ब्लेसिंग हम सब पे आ जाए, यस लॉर्ड जीसस। तेरे Yes. लहू को मांगते हैं खुदावंद, तेरे लहू की कुदरत को मांगते हैं, जो तूने कलवरी पे बहाया खुदावंद, जो तूने हमारे लिए बहाया खुदावंद। हम आम लोग नहीं है खुदावंद, हम तेरे लहू से खरीदे हुए हैं Yes, Lord. खुदावंद, Yes. तूने हमारी कीमत दी है खुदावंद, हम करते हैं खुदावंद, Yes. हम इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद तूने हम पे ये दया की, तूने ये मेहरबानी की, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। हम प्यारे खुदावंद हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि खुदावंद वो तेरे लिए प्यारे खुदावंद हम चूज कर सके, लेकिन खुदावंद इन ये नाचीज जुबान तेरे नाम की शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हो, और खुदावंद हम रोज तेरी शुक्रगुजारी के नगमे गाएं, और खुदावंद तेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और तेरे रूह में भर जाएं यीशु के नाम में। Yes. खुदावंद तेरे खौफ में प्यारे खुदावंद अपनी जिंदगी गुजारे, खुदावंद तेरे खौफ में आगे बढ़े, खुदावंद तेरी हिकमत में बढ़ते जाएं, खुदावंद तेरी Amen. ताबेदारी में बढ़ते जाएं, खुदावंद जी तेरे ताबेदार हो जाएं खुदावंद, जैसा तू चाहता है खुदावंद वैसी शेप दे, क्योंकि खुदावंद तू ही हमें प्यारे खुदावंद ताता है खुदावंद, हाँ तेरा पाक रूह हमें शेप देता है, और खुदावंद अपने पाक रूह से लबरेज करना है, यस लॉर्ड जीसस। प्यारे खुदावंद हमारा जोर बन, आज हमारी ताकत बन खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है मेरे खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे अब्बा कह के बुलाते हैं, क्योंकि Yes. खुदावंद तू हमारा बाप है, तू हमारी इल्तिजा पे, हमारी जरूरत के वक्त खुदावंद, जहाँ कहीं हम कमजोर होते हैं खुदावंद, तू हमसे कलाम करता है और अपना जोर बख्शता है हमें, और हमसे प्यार करता है। तूने, तेरे प्यार की कोई इंतहा नहीं, तूने अपना बेटा हमें दे दिया ताकि हम नजात पाए, और खुदावंद तूने हमारी जिंदगी को नजात से आफ्ता बना रहे, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। अब्बा जी तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा हाथ हम पे बढ़ा रहे, यस लॉर्ड जीसस। थैंक यू खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारे साथ है खुदावंद, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं खुदावंद के जिंदगी बख्श नाम में, आमीन, प्रेज लॉर्ड। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू दी। हाँ जी, आमीन। धन्यवाद प्रभु God दास। हालेलुया। bless you, जी। गुड नाइट जी।